Hi everyone, I am Anchal Munjal and you're watching me on Telefilms. Okay, firstly, welcome to Telefilms. Tell us how life has been and how are you? Thank you. Life has been great. I have been amazing, busy working, entertaining you all, and dubbing for my two films, which are awaited to release very soon. Tell us something more about the film which is going to come. Right. What are your roles? In which platform it is going to come? So, there are two films, and both of them I am playing the main lead in. I can't speak too much about one film, but the other film I just got the permission for, and I want to reveal. It's called Mandli. That's the name of the film. Well, very soon you'll watch the trailer and you'll understand as to why the name is kept. But I've had an amazing time shooting for the film. It's directed by Rakesh Chaturvedi Om, and we shot it in Mathura, one entire month in Mathura. We had an amazing time. I am a firm believer of Lord Krishna, and I remember for the puja we went to Banke Bihari Ji, and वहाँ पे there's a platform where not many people can sit, like not common people, and all the priests and everyone, they all sit, they perform the rituals. We were all made to sit over there, do all the puja, do the sanskar, all the seva and everything, and it felt like a miracle to be sitting over there. Then in 1 month we shot for it. It was very quick, and I'm waiting. I'm excited for you all to watch it. Mandi की बात करें, it's called like group of people Right, gathering together. Is it right. something like tell us more about Why the name? I'm not gonna tell you. The concept is beautiful. I can assure you that. And once the trailer is out, I want you to be excited to watch it. Ki why the name Mandli? Because of course it's a different and unique name. So if I speak about it and you'll watch the trailer, you'll be like, "Huh, and we know Anchal spoke about it." I want you to watch the trailer with excitement. and who are the people who is working with you? Any co-star would you like to visit with? They're good actors, actors who you have seen in the past before, and I loved working with them. Few veteran people, and बाकी आप देखिएगा और बताइएगा how you find the film. थोड़े पीछे जाते हैं हाँ जी. चाइल्डहुड से काफ़ी काम किए आपने Right, डिफरेंट इंडस्ट्री में काम किए डिफरेंट लैंग्वेज में भी काम किए हाउ डू सी नाउ नाउ यू आर गेटिंग प्रोजेक्ट फॉर right, बिग बिग स्क्रीन right. फैमिली से शुरुआत की किस तरह से करियर को देखते हो आप आ करियर अच्छा जा रहा है, टच वुड फॉर दैट. पहले आई रियलाइज जब मैं बचपन में वीर ऑल वेरी केयर फ्री कि हाँ ठीक है, मतलब हो जाएगा, शूट पे चले गए, ये हो जाएगा. स्क्रिप्ट आती थी सामने, आई स्टिल रिमेंबर परवरिश तो फेल लाइक अनदर होम ओनली, क्योंकि वहाँ पे जाकर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था कि कैसे एक्टिंग करेंगे. अच्छा पढ़ लिया, ठीक है, रावी ने ऐसे ऐसे बोलना है, आज मम्मी को जाके मम्मी मैं जा रही हूँ स्कूल, और यही डायलॉग होता था और चले गए, मतलब और फिर जैसे ही कट होता था और बच्चों को पूछे वो तूने वो चॉकलेट खाई क्या, मैंने ये वाली खाई. तो इट वाज मतलब नॉर्मल चाइल्डहुड जैसा होता ही है. बट ऑफ कोर्स जैसे जैसे बड़े होते हैं यू रियलाइज़ कि एक एक्टर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एंड इट्स नॉट एन ईजी जॉब. आई स्टिल रिमेंबर घायल में जो हमारे मेरा पूरा पूरा क्लाइमेक्स मुझ पे दर्शाया गया है अबाउट हाउ सनी सर फाइंड्स हिज डॉटर अनुष्का, एंड इट वाज अ टीडियस वन. एक पूरे एक पैर पे कास्ट होता था, मैं सारा टाइम व्हील चेयर पे लेटी रहती थी, बिकॉज इट वॉज अ वेरी यूज सेट. हेली पैड पे हम लोग शूट कर रहे थे, चॉपर सीन्स होते थे, तो मुझे बार बार नीचे नहीं उतार सकते थे. तो जब पूरी क्रू अगर लंच ब्रेक कर रही है तो मेरे लिए अलग से अम्ब्रेला लगता था, वहाँ पे लंच आता था, बिकॉज आई कॉन्ट रिमूव द कास्ट एंड गो डाउन अगेन एंड अगेन. सो उस टाइम पे रियलाइज़ होता था कि वॉट यू सी ऑन द स्क्रीन इट्स सो ब्यूटिफुल. मतलब लोग बोलते हैं वाह कितना बड़ा घर दिखा दिया, ओ अनुष्का को चोट लग गई, अब सनी देओल आएंगे बचाएंगे, बट द प्रोसेस बिहाइंड इट is really tedious, and that responsibility I've started understanding as an actor. एंड इवन इन योर रिसेंट इंटरव्यू परवरिश की मैं बात करूँ जी. पीपल वर लाइक यू नीड टू वॉच इट एंड नाउ स्विच Yeah. ऑफ द टीवी नाउ गो हाँ बैक जी. टू उसके बारे में Correct. कुछ बताइए जिस तरह से प्यार मिलता है
मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरी सिर्फ माँ की बेटी नहीं हूँ, मैं इस पूरे देश की बेटी हूँ, क्योंकि जिस जिस हक से मेरी मॉम मुझे प्यार करती हैं वैसा हक और प्यार मुझे दूसरों से मिलने लग गया। आई रिमेंबर कुछ आंटीज आके मुझे ऐसे गले लगाती थी जैसे वो अपनी बेटी को मिल रही है, एंड दे यूज्ड टू बी लाइक, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे तुम्हारी तरह बने, एंड आई एम लाइक वाओ दैट्स एन ऑनर, बट थैंक यू सो मच। एंड कितने सारे लोग बोलते थे, हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं, हम बोलते थे मम्मी पापा को कि पूरा दिन फ़ोन मत दो, टीवी बिल्कुल मत देखने दो, बस डिनर के टाइम जब परवरिश आएगा हम डिनर खाएंगे, आधा घंटा प्लीज़ टीवी देखने देना बोर्ड के एग्जाम्स के टाइम। सो दैट फेल्ट अमेजिंग, एंड यू नो उस टाइम पे शूट करते वक्त नहीं रियलाइज़ हो रहा था कि हम कितना आइकॉनिक शो बना रहे हैं, बट जब हम ट्रैवल करते थे, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे पायलट्स बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो दे हैव सच अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ दे फ्लाई अराउंड। एक पायलट, ही वॉज प्रॉबली इन हिज mid-20s ओनली, एंड ही वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स मी, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी तरफ क्यों वॉक कर रहे हैं, एंड ही इज़ लाइक यू आर रावी ना, आई एम लाइक येस, एंड ही इज़ लाइक यू नो वॉट, मेरी जब भी फ्लाइट लैंड होती है और अगर वो 9 साढ़े 9 के आसपास होती है, मैं भागता हूँ होटल और मैं तुम्हारा शो देखता हूँ जस्ट फॉर यू, एंड आई एम लाइक what, that is amazing, will I get like a free coffee on the plane? So that you know all of these experiences made me realize कि जब आप शो कर रहे होते हो आपको बहुत प्यार मिलता है, उसी प्यार के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जिसके साथ आपको आगे बढ़ना पड़ता है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू परवरिश फॉर ऑल द लव एंड फेम। आज तक मुझे मैसेजेस आते हैं कि यार जल्दी से फिल्मों में आओ, जल्दी से फिल्में रिलीज़ करवाओ, वी आर मिसिंग यू। सो टू ऑल माई फैंस आउट देयर, मैं आ रही हूँ बहुत जल्दी। उन सारे मैसेजेस में क्या हाँ जी। आपको, ऐसा मैसेज आते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू सी यू ऑन हाँ वन ऑफ जी। द बिगेस्ट रियलिटी शो, बिकॉज इवन यू रिजेक्टेड ट्वाइस, दो कंटिन्यू इयर्स आए थे आपको, हाँ जी। बट आपने रिजेक्ट, व्हाट इज द Correct. रीजन बिहाइंड इट? ये बहुत कंट्रोवर्शियल वैसे क्वेश्चन है, बट मैं इसका बहुत इजी जवाब दूंगी। आई एम हियर एज एन एक्टर, ठीक है, मैं मेरी पर्सनल ज़िंदगी में जैसी हूँ वो सिर्फ दो लोग जानते हैं, वो है मेरी मॉम और मेरी प्यारी सी बच्ची मैजिक, शी इज़ अ शेज़ू। उसके अलावा मैं बहुत एक ना बहुत क्लोज पर्सनैलिटी हूँ और मेरे बहुत लेयर्स हैं मेरे आसपास, और मैं हर बार एक प्रोजेक्ट करती हूँ ना, मैं एक लेयर को अनफोल्ड करती जाती हूँ, मेरे पास इतनी लेयर्स हैं टू माई ओन पर्सनैलिटी। अब मैं वो सब लेयर्स ना अपनी फिल्म करियर के लिए बचाना चाहती हूँ कि मैं हर कैरेक्टर में एक थोड़ी सी झलक आंचल की देकर जाऊँ। अब एक रियलिटी शो में जाऊँगी, पूरी आंचल दिखा दूँगी, तो फिर मैं फिल्मों में अपने आप को एक्सप्लोर कैसे कर पाऊँगी? सो आई एम सेविंग माई सेल्फ फॉर दैट। And lastly, when your upcoming projects are going to come, राइट। and apart from those two projects, any upcoming project for? राइट तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों ही फाइनल स्टेजेस में हैं ऑफ रिलीजिंग वेरी सून। मंडली तो मतलब ऐसा है कि कल भी गुड न्यूज़ मिल सकती है कि हमने OTT के साथ ये डील कर ली है और ये इस टाइम पे ऐसे से आ रही है। तो माई फिंगर्स आर क्रॉस, कब मुझे कॉल आएगा प्रोड्यूसर्स से, आई हैव नो आइडिया अबाउट साइनिंग न्यू प्रोजेक्ट्स। येस, फिल्म नरेशंस आर ऑन। एक वेब शो की बात हो रही है जिसके बारे में अभी तो बता नहीं सकती हूँ। जैसे ही चीज़ें लॉक हो जाएंगी शायद मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। Thank you so much and all the best for your upcoming. Thank you. Thanks a lot.